ہیڈ لائنز آپ نے جانی. ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں سردیوں کے موسم میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے، جس کے باعث کمرشل صارفین بالخصوص ہوٹل مالکان شدید مشکلات کا شکار ہیں. ایل پی جی کی مہنگی قیمتوں نے بھی شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں سردیوں کے موسم میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے، جس کے باعث کمرشل صارفین بالخصوص ہوٹل مالکان شدید مشکلات کا شکار ہیں. ایل پی جی کی مہنگی قیمتوں نے بھی شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے. اس پر سہیرا طارق کی رپورٹ دیکھیے. ملتان میں گیس کی بندش نے ہوٹل انڈسٹری کو بری طرح متاثر کر دیا ہے. گیس نہ ہونے کے باوجود بھاری بھرکم بل موصول ہو رہے ہیں، جس پر ہوٹل مالکان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. ہوٹل مالکان کا کہنا تھا کہ گیس کی عدم فراہمی کے باعث مہنگی ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. 330 روپے فی کلو ایل پی جی نے کمرشل صارفین کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، جبکہ اضافی اخراجات کے باعث کاروبار چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. میم کیا کریں، اب سردی ہے نا، گیس تو مہنگی ہے، 330 روپے کلو دے رہے ہیں. مہنگائی کا دور ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، کرائے پورے نہیں ہوتے، کیا کریں؟ مزدوری ہے، مزدوری کر رہے ہیں، کیا کریں؟ اضافی تقریباً آگے کرنا کچھ بچ جاتا تھا، اب تو بچوں کا خرچہ بھی نہیں بچتا. ہوٹل مالکان کا مزید کہنا تھا کہ گیس بندش کے باعث متبادل ایندھن پر انحصار مجبوری بن چکا ہے، جس سے منافع کی بجائے نقصان کا سامنا ہے. اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کروائی جائے. کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ سہیرا طارق، روہی، ملتان. ادھر احمد پور لمحہ میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے. روز بروز آٹے کی قیمتیں بلندیوں کو چھونے لگیں، جس سے دہاڑی دار طبقہ شدید پریشان ہے. شہری کہتے ہیں کہ 15 روز قبل آٹے کی قیمت 120 روپے کلو تھی، لیکن اب یہی آٹا 140 روپے کلو میں مل رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، احمد پور لمحہ میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے. روز بروز آٹے کی قیمتیں بلندیوں کو چھونے لگی ہیں، جس سے دہاڑی دار طبقہ شدید پریشان ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ 15 روز قبل یہی آٹا 120 روپے کا مل رہا تھا، لیکن اب یہ آٹا 140 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. لمحہ میں آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے. روز بروز آٹے کی قیمتیں بلندیوں کو چھونے لگی، جس سے مزدور اور دہاڑی دار طبقہ پریشان ہونے لگا. احمد پور لمحہ کے دہاڑی دار شہریوں کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آٹے کی آئے روز بڑھتی ہوئی قیمتوں نے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی ہے. 15 دن پہلے یہی آٹا 120 روپے کلو دستیاب تھا، لیکن اب 140 روپے فی کلو مل رہا ہے، جس وجہ سے ہم جیسے عام شہری اور دہاڑی دار مزدور طبقہ بہت پریشان ہو چکا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. 15 دن پہلے آٹا یہ 120 روپے کلو تھا، پھر 100 آج لینے کے لیے ہے ہم 140 روپے کلو ہے. آٹا ریٹ 140 روپے کلو دیتا دیہڑی دار بندے جی کدا گزارا کریے. آج تو 10 دن پہلے 4000 4,500 ہوں 6000 ہوئی کھڑی ہے. دہاڑی دار مزدور طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کو علاقائی اور یونین سطح پر آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد حسین بٹ، روہی، احمد پور لمحہ. ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء میں مہنگائی کے طوفان کو تھامنے میں انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے. خود ساختہ مہنگائی کے باعث شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں. روزانہ کی بنیاد پر جاری ہونے والی پرائس لسٹ عوام کے کسی کام نہ آ سکی. دکاندار سرکاری نرخوں کے بجائے شہریوں کو من مانے داموں سبزیاں اور پھل فروخت کر رہے ہیں. خود ساختہ مہنگائی کرنے والے عناصر مہنگے داموں سبزیاں اور پھل شہریوں کو بیچنے لگے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نہ ہونے کے باعث شہری بھی مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور. سرکاری ریٹ لسٹ میں سب سے سستی سبزی آلو 17 روپے کلو مقرر. مارکیٹ میں آلو 35 روپے کلو تک فروخت ہوتا رہا. سرکاری نرخ نامے میں ادرک 252، کریلا 140، دیسی لہسن 200 روپے کلو مقرر. مارکیٹ میں دیسی لہسن اور ادرک 350، کریلا 200 روپے فروخت. سرکاری ریٹ لسٹ میں بینگن 24، پالک 30، ٹینڈے 56 اور ٹماٹر 60 روپے کلو مقرر. مارکیٹ میں بینگن 40، پالک 50، ٹینڈے 70 اور ٹماٹر 90 روپے کلو تک فروخت ہوتے رہے. سرکاری ریٹ لسٹ میں ساگ 40، گاجر 30 اور کدو 100 روپے کلو مقرر. مارکیٹ میں ساگ اور گاجر 60، گھیا کدو 150 روپے فی کلو فروخت ہوتا رہا. پھل بھی عام شہری کی دسترس سے باہر. سرکاری ریٹ لسٹ میں انار 520، پپیتا 230، چیکو 240 اور سیب 332 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں انار 650، پپیتا اور چیکو 300 اور سیب 400 روپے کلو تک فروخت. سرکاری ریٹ لسٹ میں بیر 180، خربوزہ 120 اور امرود 130 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں بیر 400، خربوزہ اور امرود 200 روپے کلو تک فروخت فی درجن ہے. انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ شہری سستی اور معیاری سبزیاں پھل خرید سکے. کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان.
सलमान जमीर की रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि सोने की कीमत 5,10,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। 24 घंटे में सोने की कीमत में 4,000 रुपए फी तोला इजाफा हो गया। 24 के रात सोना 5,10,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 के रात सोना 4,67,500 रुपए फी तोले तक जा पहुंचा। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत 5,10,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 4,000 रुपए फी तोला इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 के रात सोना 5,10,000 रुपए फी तोला हो गया, जबकि 22 के रात सोना 4,67,500 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत से 5 लाख रुपए और 5,10,000 रुपए फी तोले की बुलंद तरीन सतह पर सोना पहुंच चुका है। 24 घंटे में सोने की कीमत में 4,000 रुपए फी तोला इजाफा हुआ है। 24 के रात सोना 5,10,000 रुपए फी तोला फरोख्त हो रहा है, जबकि 22 के रात सोना 4,67,500 रुपए फी तोले तक जा पहुंचा है। मुल्तान में ताहाल गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स का खात्मा न हो सका। जिले इंतजामिया और सिविल डिफेंस हुकाम बड़े सानहे के मुंतजिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों कासिम बेला, पीरा गायब रोड और दीगर मकामात पर गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स मौजूद हैं। तफसीलात अहमद खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान शहर में ताहाल गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स का खात्मा न हो सका। जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस हुकाम बड़े साने की मुंतजिर हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कासिम बेला, पीरा गायब रोड, मुमताजाबाद चौक, कुम्हारा वाला, रजाबाद और दीगर मकामात पर गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स मौजूद हैं। जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस की टीमें खामोश हैं। शहरियों का कहना है कि किसी भी वक्त शहर में बड़ा सान्या हो सकता है। गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स पर हिफाजती इकदाम भी नहीं किए गए और आम मार्केट की निस्बत यहाँ पेट्रोल भी महंगा मिलता है। गैर कानूनी पेट्रोल पंप जितने भी हैं वो नुकसानदेह हैं, सेफ्टी के अलामात कोई नहीं है और पेट्रोल की मिक्सिंग का भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। पैमाने की भी शिकायत है कि पैमाना कम दिया जाता है और फिर रेट्स ऑटोमेटिकल ये 10-15 रुपए दूसरों से ज़्यादा ले रहे हैं। और जो बाइक है पेट्रोल की एवरेज अच्छी नहीं है और मिक्सिंग इतनी है कि मोटरसाइकिल और बाकी मामलात, मैकेनिकल मामलात काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव इशू कर रहे होते हैं इस चीज़ में। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर से गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स को खत्म किया जाए ताकि शहर को किसी बड़े साने से बचाया जा सके। कैमरामैन कामरान के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि बदलता निजाम निखरता पंजाब सूबाई तारीख के सबसे बड़े तरक्याती प्लान पर अमली काम का आगाज हो गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब को मजीद खूबसूरत और जदीद बनाने के अज़्म के साथ मरियम नवाज का सोना पंजाब मंसूबे पर तेजी से काम मुकम्मल करने की हिदायत की है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पंजाब के 51 शहरों में मरीम नवाज के सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गए। पंजाब के हर शहर में सीवरेज, सड़कें, गलियां, निकासी आब और दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया होंगी। वजीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास में पंजाब को मजीद खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 51 शहरों में 5,887 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 ड्रेनेज लाइन तामीर होंगी। सीवरेज के लिए हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन पाइप की तैयारी तेजी से जारी है। मरीम नवाज का सोहना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें, गलियां पुख्ता की जाएंगी। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर मौसर अमल दरामद के लिए सूबाई और जिले सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे, जहां से हर मंसूबे की पल पल की मॉनिटरिंग की जाएगी। वजीर आला ने मंसूबे की तकमील और अवामी मसाइल के हल की बराह रास्त निगरानी खुद संभाल ली। मुल्तान की मसरूफ फिश मार्केट रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खराब सड़क ने न सिर्फ आमदोरफ्त को मुश्किल बनाया है बल्कि कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। इस पर अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की फिश मार्केट रोड शहर की अहम तिजारती सड़कों में शुमार होती है, जहां रोजाना सैकड़ों शहरी और ताजिर आते जाते हैं। सड़क की खस्ता हालत के बायस गाड़ियों और पैदल चलने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मुकामी ताजिरों का कहना था कि फिश मार्केट का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर सड़क की खराब हालत की वजह से रसद में रुकावटें पैदा हो रही हैं। मछली की बरवक्त तरसील न होने से कारोबारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये साल हो गया जी, हमें जलील हो रहे हैं, खुआर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, पूरे साल हो गए यहाँ से ना हमारे 3 दफ़ा समझ रेडी पलट गई है मेरी, बड़े नुकसान होते हैं। मेरा यहाँ ठीक है खाने पीने का, चावल छोले का, लेकिन वहाँ से स्कूल के बच्चे तक नहीं आते आगे, क्यों जी रोड खराब है बाबा। शहरियों के मुताबिक बारिश के दिनों में सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक जैम होता है बल्कि हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फिश मार्केट रोड की मुकम्मल तामीर और मरम्मत की जाए। उनका मजीद कहना है कि अगर सड़क दुरुस्त कर दी जाए तो मार्केट की रौनकें बहाल हो सकती हैं और शहरियों को भी सहूलत मिलेगी। रोड टूटा हुआ है और 7 दफ्तर है, फिर भी यहाँ पर रोड नहीं बन रहा। उधर से शुरू किया शाहशमा पार्क था, फिर आगे आया ही नहीं।
15 दिन हो गए हम इस इंतजार में, कब बनेगा रोड। शहरियों और ताजिरों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और फिश मार्केट रोड की मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि हादसात से बचाव और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, रूही मुल्तान। फतेहपुर में 10.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर पुराना भट्टा रोड चंद ही माह में टूट फूट का शिकार हो गया। नाकिस मटेरियल और गैर मयारी काम ने करोड़ों रुपए का मंसूबा खंडर बना दिया। मुश्किलात में मुब्तला शहरी कहते हैं कि अभी तक ठेकेदार की सिक्योरिटी जमा है, उससे सड़क की दोबारा तामीर कराई जाए। तफसीलात चौधरी मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट में देखिए। मनाजिर हैं फतेहपुर की पुराना भट्टा रोड के, जो 10.5 करोड़ रुपए की लागत से चंद माह कबल तामीर की गई थी, लेकिन नाकिस मटेरियल और गैर जिम्मेदाराना तामीराती काम ने इस सड़क को तबाह कर दिया। कंक्रीट रोड में जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि सड़क पर मैन होल्स के ढक्कन 1 फुट तक नीचे धंस चुके हैं, जो आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरियों के मुताबिक ये सड़क अभी नई बनी थी, मगर अब हालत ये है कि मोटरसाइकिल तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। रात के वक्त मैन होल नजर नहीं आते, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। 10 करोड़ की लागत से ये रोड बना था। हाल ही में तकरीबन 6 माह हुए हैं इसे बने हुए। नाकस मटेरियल की वजह से, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से इसमें गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क की दोबारा तमीर कराई जाए। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर पुराना भट्टा रोड का दौरा करें और इसकी हालत का जायजा लेकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि जिलाई इंतजामिया इस संगीन सूरत हाल पर कब नोटिस लेती है। क्या ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी और अवाम के टैक्स का पैसा महफूज बनाया जा सकेगा या नहीं। कैमरा टीम के हमरा चौधरी मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर सफाई ऑपरेशन मैनेजर सुथरा पंजाब समीउल्लाह की निगरानी अस्पताल की सड़कों को पानी से धोकर साफ किया गया। कचरे और गंदगी को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। ऑपरेशन मैनेजर सुथरा पंजाब के मुताबिक शहरियों को सुथरा और सेहतमंद रहीम यार खान फराहम करना सुथरा पंजाब मुहिम का बुनियादी मकसद है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सुथरा पंजाब के तहत शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान में सफाई सुथराई की मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज कर दिया गया। सुथरा पंजाब टीम ने अस्पताल की सड़कों, दाखिली और खारजी रास्तों और इर्द गिर्द के इलाकों की मुकम्मल धुलाई की। कचरा और गंदगी फौरी तौर पर उठाकर ठिकाने लगाई गई। सफाई ऑपरेशन में जदीद मशीनरी और अफरादी कुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किया गया। सफाई मुहिम की निगरानी ऑपरेशन मैनेजर सुथरा पंजाब समीउल्लाह ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सेहत के मराकज की सफाई सुथराई अव्वलीन तरजीह है। शेख जायद अस्पताल जैसे बड़े इदारे में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाना अवामी सेहत के लिए नागुज़ीर है। मरीजों और लवाहिकीन को सेहतमंद और साफ सुथरा माहौल फराहम करने की अमली कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो सफाई बरकरार रखने में इंतजामिया से ताउन करें और कचरा मुकर्ररा मकामात पर डालें। अभी हमारे वर्कर्स अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी वॉश कर रहे हैं और साथ वार्ड भी वॉश करवाए जा रहे हैं। जो इनके ऑलरेडी वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है सारा। तो ये चूँकि हॉस्पिटल हमारा 3 सूबों के संगम पे है, तो इधर रश बहुत ज़्यादा होता है कि जितने बेड्स इनके पास मौजूद हैं उससे ज़्यादा कहीं रश होता है। शेख जायद अस्पताल में सफाई ऑपरेशन को मरीजों, लवाहिकीन और अमले ने खुशाइन करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की सफाई मुहिम्मात जारी रहेंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।